Hello students, the next chapter that we shall start is reduction of second degree equations. Right? This is your section number 4. ठीक है, तो आपने इस सेक्शन के लिए 13 चैप्टर पूरे अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है. राइट? इसमें क्या है, you will be given a second degree equation f x y z which is equal to ax square by square cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. आपको एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन को रिड्यूस करके यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इट्स फॉर्म कि ये क्या है. ठीक है, तो आफ्टर द रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, पहले तो ये बात आपने याद रखना है कांस्टेंट को कि a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, c रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, 2 इंटू एफ रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई जेड, 2g रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, 2h रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, 2u will be coefficient of x, 2v coefficient of y, 2w coefficient of z और d रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट. आपने इनको हिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है आप ऐसे लिख ले 2g y z, नो. तो ऐसा करने से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि द प्रोसेस यू विल फॉलो विल बी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम. राइट? ठीक है, तो थियोरी क्या कहती है कि आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन and rotation of axis, ठीक है, ये दोनों स्टेप्स के बाद ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाती है. द अबव इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. What are the forms? First of all, it can be reduced to this form ax square by square cz square equal to 1, which is ellipsoid. ठीक है, हम मान के यहाँ पे चल रहे हैं a b c are all positive. Or it can be reduced to this form ax square plus by square minus cz square equal to 1, which is hyperboloid of one sheet. Third, it can be reduced to this form ax square by square minus cz square equal to 1. It is hyperboloid of two sheets. Number 4, it can be reduced to this form. ये इस तरह से भी reduce हो सकती है equation. Then it will be cone. ठीक है, इसमें क्या है, इन चारों में you will be having only coefficient of x square, y square, z square known 0 and right hand side 1. इन तीन में यहाँ पे coefficient of x square, y square, z square ही है, बट राइट साइड में 0 है. राइट? यहाँ पे कोई साइन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे दो नेगेटिव है. राइट? और इन चारों फॉर्म्स में क्या कॉमन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ही रिटेन करते हैं. राइट? Another form that it can be reduced to ax square by square equal to 2cz. This is called elliptic paraboloid. Next, ax square minus by square equal to 2cz. This is hyperbolic paraboloid. 7. This is a times x square plus y square plus cz square equal to 1. This is ellipsoid of revolution. Next, 8th form is a times x square minus y square plus cz square equal to 1. This is hyperboloid of revolution.
Next form is a times x square plus y square equal to 2cz. This is paraboloid of revolution. Next is ax square plus by square plus d. This is elliptic cylinder. Next is ax square minus by square plus d equal to 0. This is hyperbolic cylinder. 12 number form, ax square minus by square equal to 0. These are pair of intersecting lines. 13 number form is ax square plus bx plus c equal to 0. These are pair of parallel lines. 14 number form, y square equal to a times x. This is parabolic cylinder. ठीक है. सो ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 14 फॉर्म्स. तो आपने इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल फॉर्म्स, व्हाट आर द पॉसिबल फॉर्म्स एंड व्हाट आर देयर करेस्पॉन्डिंग नेम्स. अगर ये फॉर्म है तो ये क्या है, अगर इस तरह की फॉर्म है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये फॉर्म है तो क्या है, राइट. तो ये सारा आपको लर्न करना पड़ेगा कि फॉर्म्स के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, राइट. नेक्स्ट इज द मेथड रिडक्शन ऑफ a general equation to the standard form and to discuss the nature of the conicoid. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, रिडक्शन करेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन की और उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि वो इनमें से कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है. सो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस के अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, राइट. सो हर एक केस बड़ा ही मतलब वो है, हर एक एक्सरसाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी. ठीक है, इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, राइट. तो उसी से आपका जो सेक्शन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है. तो इसको आपने किसी भी कीमत पे इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से इस चैप्टर को आपने करना है, राइट. हाँ जी. केस वन विच विल बी योर एक्सरसाइज नंबर 13.1. ठीक है. हाँ जी. व्हेन, सबसे पहले यू विल फॉर्म डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक. ठीक है, यह मेथड रहेगा. आपको ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी गई है. ठीक है, आपने ये डिसाइड करना है कि इस कर्व का नेचर क्या है. तो सबसे पहले यू विल फॉर्म अ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक. ठीक है, केस यहां से नहीं स्टार्ट होता, पहले यू विल फॉर्म डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक. व्हाट इज दैट डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक? डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज गिवन बाय लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स a प्लस b प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स a प्लस b प्लस c माइनस d इक्वल टू 0. ठीक है, आपको ये सारे कांस्टेंट में बता दूं ये क्या क्या है. a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, c इज कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दी गई होगी. ठीक है, व्हाट इज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C नाउ. ठीक है, आप ये वाली जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए. A H G, ऐसे याद रखो, A B C. ठीक है, फिर F, फिर G, फिर H. ठीक है, यू फॉर्म दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, व्हाट विल बी A? A विल बी कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a. कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a क्या होगा? दिस इज स्मॉल a को, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो. व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a? B इंटू C माइनस एफ स्क्वायर. ठीक है, BC minus F square will be capital A. What is capital B? It will be cofactor of small b.
ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इट इज ए सी माइनस जी स्क्वायर. व्हाट इज कैपिटल सी? को फैक्टर ऑफ स्मॉल सी. ये है सी, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ए बी माइनस एच स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है आपको, ये भी क्लियर हो गया. इट इज ऑल्सो क्लियर, दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज डी? डी इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट. डी है इस मैट्रिक्स का पूरा डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट निकाल के यू विल फॉर्म दिस इक्वेशन विच इज अ क्यूबिक इन लैम्डा. राइट, सॉल्व दिस क्यूबिक टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है. देयर बाय यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, लेट दे बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. ठीक है, these are roots of discriminating cubic. ठीक है, हाँ जी. now case 1. now there arises case number 1. case number 1 says when all the characteristic roots means roots of this discriminant cubic, all the characteristic roots of discriminating cubic are different from 0. ठीक है, तो ये वाला स्टेप तो आपने हर एक केस में करना है. सबसे पहले आपने ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. मैंने आपको इसमें बता दिया कि एबीसी कैसे लेना है, ये एबीसी क्या है और ये डी क्या है. ठीक है, जनरल इक्वेशन दी हुई होगी. सबसे पहले आपने ये क्यूबिक तो बनानी ही बनानी है. एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, which are nothing but the roots of the discriminating cubic. Now there are different cases arises, and according to these cases there is exercise number 1, exercise number 2, exercise number 3, exercise number 4. right? हाँ जी, इस केस में क्या है? all the characteristic roots of discriminating cubic are different from 0. इन तीनों में से कोई भी 0 के बराबर अगर नहीं है. right? then what is the next step? next step is number 1, you find the coordinates of center. ठीक है, you will find coordinates of the center. ठीक है, सेंटर हम ये डेफिनेशन कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर में. सेंटर क्या होता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. इसको नाम दे रही हूं मैं अल्फा बीटा गामा का सेंटर को. ठीक है, हाउ दिस इज फाउंड? दिस इज फाउंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस curl f by curl x equal to 0, curl f by curl y equal to 0, curl f by curl z equal to 0. ठीक है, you will solve this equation to find the value of x, y, z and that will give you the coordinates of the center. right? Second step, shift the origin to the center अल्फा बीटा गामा. अगर आप ओरिजिन को इस सेंटर पे शिफ्ट कर देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है? इट बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2gzx 2fyz 2hxy प्लस मीन्स ये है 2 डिग्री वाली टर्म्स. ठीक है, प्लस डी डैश इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में बन जाती है. व्हाट इज डी डैश? डी डैश इज गिवन बाय यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी. आपको पता है व्हाट इज डी? डी इज द कांस्टेंट टर्म इन द गिवन इक्वेशन. u half of coefficient of x, v half of coefficient of y, w half of coefficient of z in the given equation, and alpha beta gamma they are the coordinates of the center. ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन ये बन जाती है. राइट? हाँ जी, आफ्टर suitable
rotation of axis, the reduced equation becomes, इसके बिहाइंड हमने थ्योरी नहीं करनी, हमने जस्ट सिर्फ इतना ये स्टेप्स मतलब अपने वो करने हैं, रिवाइज करने हैं कि ऐसा करने से ये आ जाता है, ऐसा करने से ये आ जाता है, और कैसे वो इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है, राइट। ओके, सो आफ्टर दिस सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आपको दी गई है, वो क्या फॉर्म ले लेती है, बिकम्स λ1 x स्क्वायर, λ2 y स्क्वायर, λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है λ1 क्या है, λ1, λ2, λ3 दे आर द रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक जो आपने सबसे पहले फाइंड आउट किए थे, और d डैश है ये। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये फॉर्म बन जाती है, राइट। सो आपके पास वो फॉर्म तो आ गई। ठीक है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या है। इट कुड बी वन ऑफ द, ये जो इक्वेशन है ये इन चार में से कोई एक इक्वेशन एक फॉर्म की हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है दैट कैन बी रिड्यूस टू 4, ये जो इक्वेशन है इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड वेदर इट इज इलिप्सॉइड, वेदर इट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, वेदर इट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, वेदर इट इज ए कोन। ठीक है, यहां से आपको नेचर का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, यू मे हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। ठीक है, यहां तक तो आपको नेचर तो पता चल जाएगी कि नेचर क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट क्या करती है, राइट। हाँ जी, नाउ यू विल फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस। एक्सिस कौन सी, कि आपने जो सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस की है, वो जो न्यू एक्सिस है ओल्ड सिस्टम के रेफरेंस में उनकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, दे कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग a माइनस लैम्डा टाइम्स l, एच एम जी एन इक्वल टू 0, एच एल b माइनस लैम्डा टाइम्स m, एफ एन इक्वल टू 0, जी एल एफ एम सी माइनस लैम्डा टाइम्स एन इक्वल टू 0। ठीक है, आपने सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 पुट करना है इसमें। ठीक है, फिर इन दोनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई दो इक्वेशन सॉल्व करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एल एम एन, राइट। फिर आपने लैम्डा को लैम्डा 2 पुट करना है, देयर बाय यू विल हैव अनदर सेट ऑफ वैल्यूज एल एम एन। फिर आपने लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 3 पुट करना है, देयर बाय यू विल हैव अनदर सेट ऑफ वैल्यूज एल एम एन। ठीक है, सो दिस वे you will be finding direction ratios of 3 axes, right? Next question that may be asked, you may be asked to find principal planes. अब प्रिंसिपल प्लेन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल प्लेन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा टाइम्स एल एक्स एम वाई एन जेड प्लस यू एल वी एम डब्ल्यू एन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, देन यू विल फॉर्म दिस इक्वेशन एंड लैम्डा को लैम्डा 1 पुट करेंगे एंड करेस्पॉन्डिंग एलएमएन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यू विल हैव वन प्रिंसिपल प्लेन, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 पुट करेंगे एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एलएमएन पुट करेंगे। यू विल हैव अनदर प्रिंसिपल प्लेन, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 3 पुट करेंगे, यू विल हैव देन यू विल पुट corresponding values of element and thereby you will be finding the third principal plane. ठीक है, this way you will be finding 3 principal planes, right? So this is the process which we will follow in this exercise. बिल्कुल ऐसा ही हमने करना है एक्सरसाइज एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं, आपको ये एक बार में फर्स्ट शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने अटेम्प्ट करना ही करना है। रिड्यूस द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 10yz
माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 to the standard form and show that it represents a cone. ठीक है, हाँ जी। सो सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड डी। ठीक है, बड़े ध्यान से अपने वैल्यूज को लिखना है। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज -7, सी इज कोएफिशिएंट ऑफ जेड विच इज 2, 2f(yz) that is f is -5, 2gzx that is g is -4, 2hxy that is h is -5, 2ux that is u is 3, 2vy that is v is 6, 2wz that is w is -3, d is 5. Right? So you have the values of A, B, C, F, G, H, U, V, W and D. This is first very important step. Now you will form discriminating cubic. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक चाहो तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। चाहो तो इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हो, या इट इज ऑल्सो गिवन बाय द डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा एच जी एच बी माइनस लैम्डा एफ जी एफ सी माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, यू हैव ए बी सी फर्स्ट, देन यू हैव एफ हियर, देन यू हैव जी हियर, देन यू हैव एच हियर। ठीक है, फिर उसके बाद ए में माइनस लैम्डा, बी में माइनस लैम्डा, सी में माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको अगर याद रखना है आपने। राइट, नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज, दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 7 माइनस 7 माइनस लैम्डा -5 -4 -5 2 माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, यू विल हैव लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा प्लस 216 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्यूबिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड इट्स वन रूट, देन वहां से आपको क्वाड्रेटिक रिलीज हो जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना आपको आता है। राइट, सो 216 के फैक्टर बना लेते पहले। 2108, इट इज 2108, 254, 227, 2 इट इज 3933। ठीक है, तो आप देखें पहले इसके रूट्स क्या क्या हैं, 2 है, 4 है, 3 है, 12 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपने हिट एंड ट्राई मेथड से ये देखना है कि 2 इसका रूट है, जो जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, कोई भी इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो इस 216 का फैक्टर होगा। सो यू विल लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ दिस 216 फॉर इट्स रूट्स। ठीक है, हाँ जी, पहले हम 2 को चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जब आप इसमें 2 पुट करोगे लैम्डा की बजाय, यू विल सी ये 0 के बराबर नहीं आएगा। जब आप इसमें 3 पुट करोगे, देन यू विल सी दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड टू 0। सो बाय हिट एंड ट्राई मेथड you will find that lambda equal to 3 is a root। ठीक है, एक रूट निकल आया, तो आप बाकी के रूट्स कैसे निकालोगे, 3 यहां रख दिया, 1 3 माइनस 90 एंड 216। ठीक है, 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 1 ये कैंसिल, 0 0, और यहाँ पे क्या आया -90, यहाँ पे क्या आया -90 इंटू 3 0 -27 -270। ठीक है, तो ये आएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 90, नो, ओके, इट विल बी -90 1 3 -90 216, लैम्डा इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो 3 मैंने यहाँ रखा, 1 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस, ये आ गया 0, ये आ गया, एक मिनट, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, एक मिनट, सिंथेटिक डिवीजन के साथ आपका ये क्या आएगा, लैम्डा
ओके 3 इंटू 3 ये बन गया 3 माइनस 3 0 0 माइनस 90। एक मिनट, अगर आप लैम्डा इक्वल टू 3 इसका रूट है, यू विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा प्लस 216 लैम्डा माइनस 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा प्लस 216 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 2 7 8 में 1 7 माइनस 72 लैम्डा प्लस 216 फिर आ जाएगा माइनस 72। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 72 लैम्डा प्लस 216 कैंसिल होके 0, राइट। सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर ये वाला प्लस 6 लैम्डा माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट टू रूट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, वन इज लैम्डा इक्वल टू 6 एंड अनदर इज लैम्डा इक्वल टू माइनस 12। एक लैम्डा इक्वल टू 3 आपके पास आ चुका है, so you have found 3 roots, this is lambda 1, this is lambda 2, this is lambda 3। ठीक है, so first of all the decision, first decision is yes, ये जो है all the roots are different from 0। ठीक है, सारे रूट्स 0 से डिफरेंट है, तो अभी हमें वही मेथड फॉलो करना है। Then you will find the equation of the coordinates of center. How we will find curl f by curl x equal to 0, curl f by curl y equal to 0, curl f by curl z equal to 0। जो गिवन इक्वेशन है उसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, फिर y के, फिर z के। 4x माइनस 8z कर्ल f by कर्ल x क्या बनेगा 4x माइनस 8z माइनस 10y। ठीक है, प्लस 6 2 कॉमन निकाल के बन जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 4z प्लस 3। जो गिवन इक्वेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 5x माइनस 7y माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप गिवन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, solve this equation for finding the values of x, y, z. So you will find x will be 1 by 3, y will be minus 1 by 3, z will be 4 by 3. So what are the coordinates of the center? Alpha, beta, gamma किसके बराबर आ जाएगा आपका 1 by 3, minus 1 by 3, 4 by 3। तो अब तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक फॉर्म की, उस डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक को सॉल्व किया। ठीक है, वहां से हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू आई, फिर हमने ये पाया कि ऑल द डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम 0। देन वी हैव फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बाय सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस, राइट। हाँ जी, नाउ डी डैश इज गिवन बाय u अल्फा v बीटा w गामा प्लस d इक्वल टू 0, sorry plus d। what is u? half of coefficient of x, that is 3 times alpha, this is alpha, plus v half of coefficient of y, that is 6, beta minus 1 by 3, w half of coefficient of z minus 3, gamma is 4 by 3, d is constant term। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will find this will be equal to 0, d dash is equal to 0, right। so the required equation जो reduced equation है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल टू 0। आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ रीजन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस द रिड्यूस्ड इक्वेशन विल बी दिस। ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ये है 3, लैम्डा 2 है 6 और लैम्डा 3 है माइनस 12, डी डैश हमारा आया है 0 के बराबर, राइट। सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए कोन। ठीक है, उस कोन का वर्टेक्स क्या है, सेंटर, दिस इज
the vertex which is 1/3 minus 1/3 and 4/3. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी ये इसमें रिड्यूस हो चुकी है। ये हमने यहाँ पे लिखा था कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी इसमें रिड्यूस हो जाती है। डी डैश आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपने निकाल चुके होंगे, ये वाली यहाँ पे पुट कर देने हैं, वहां से डी डैश आ जाता है। λ1 λ2 λ3 आप निकाल ही चुके थे, तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, so the given equation takes one of the following forms and accordingly you will decide whether it is which form it represents. यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनी तो ये किसकी है, ये एक कोन की इक्वेशन, राइट। हाँ जी, अगर उसने एक्सिस की पूछा होता हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस निकालने के लिए तो हम वो निकालते, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा नहीं, उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है रिड्यूस इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शो दैट इट रिप्रेजेंट्स ए कोन। ठीक है, so this question is over. So next question in this exercise, example number 2. It says reduce the equation 11x square plus 10y square plus 6z square minus 8yz plus 4zx minus 12xy plus 72x minus 72y 36z plus 150 equal to 0 to the standard form and show that it represents an ellipsoid and also find the equation of axis. ठीक है, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन, हाँ जी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करनी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, एक बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, फिर क्वाड्रेटिक निकलती है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है, देयर बाय यू विल बी फाइंडिंग ऑल द रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव क्यूबिक के रूट्स आ रहे हैं 3, 6, 18. So again the situation is same, all the roots are different from 0. So what is the next step? You will find the coordinates of center which is alpha beta gamma by solving curl f by curl x equal to 0, curl f by curl y equal to 0, curl f by curl z equal to 0. This is f x y z. इसको आप with respect to x partial derivative करोगे, with respect to y, with respect to z. इन equations को बनाओगे and solve it for x y z. Thereby you will be finding the coordinates of the center. तो center के coordinates आपके पास आ जाएंगे -2, 2 and -1. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड डी डैश, इट इज गिवन बाय u अल्फा, v बीटा, w गामा प्लस d। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो ये आपका आ जाएगा -12। ठीक है, सो द रिड्यूस्ड इक्वेशन becomes ax square by square λ1 x square λ2 y square λ3 z square plus d dash equal to 0। सारी वैल्यूज डाल के आपका आ जाएगा 3x square 6y square 18z square minus 12 equal to 0। तो ये बन जाएगा x square 3x square 6y square 18z square equal to 12। You divide this whole equation by 12 to make it 1। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x square by 4 y square by 2 z square by 3 equal to 18 upon 12 that is 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 that is equal to 1। तो ये क्या है, it is of the form x square upon a square y square upon b square z square upon c square equal to 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, it is an ellipsoid। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने रिड्यूस कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये भी पता कर लिया कि ये क्या है, ये एक इलिप्सॉइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एक्सिस। इक्वेशंस, ये जो एक्सिस हैं दे पास थ्रू दी सेंटर। ठीक है, जहां पे हमने, क्योंकि ये देखो ना, ये था ओरिजिनल सिस्टम, राइट। फिर हमने क्या किया, इस ओरिजिन को शिफ्ट किया सेंटर पे, अल्फा बीटा गामा पे,
सेंटर पे शिफ्ट किया एंड देन रोटेट किया एक्सिस को, तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम बना। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है जिसकी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, ये कहाँ से पास हो रही हैं? सेंटर से पास हो रही हैं। अगर हम इनके डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लें, वी विल बी फाइंडिंग इट्स इक्वेशंस, हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, राइट। देन हमें क्या पता है, लेट LMN be the direction cosines of the axis. ठीक है, so LMN are given by A minus lambda times L plus HM plus GN equal to 0, HL B minus lambda times M plus FN equal to 0, GL plus FM plus C minus lambda times N equal to 0। ठीक है, पहले आप लैम्डा को यहाँ पे डालोगे 3 के बराबर, फिर लैम्डा को 6 के बराबर, फिर लैम्डा को 18 के बराबर। ठीक है, अगर हम लैम्डा को डाल देते हैं 3 के बराबर, ठीक है, लैम्डा को अगर हम 3 डाल देते हैं, A B C और F G H की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 8L minus 6M plus 2N equal to 0, minus 6L plus 7M minus 4N equal to 0 and 2L minus 4M plus 3N equal to 0। ये जो सिस्टम है ये बन जाएगा। नाउ यू कैन सॉल्व इट फॉर एलिमेंट, कोई भी दो को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, L अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या बन जाएगा, 21 माइनस 16 दैट इज 5, 21 माइनस 16 दैट इज 5, M अपॉन ये बन जाएगा आपका this into this minus this into this which is minus 8 plus 18, ये बन जाएगा आपका 10 के बराबर, n अपॉन this into this 24 minus 14 that is also 10। ठीक है, so LMN क्या बन जाएगा, 5 कॉमन 1 2 2। so direction ratios of the axis corresponding to lambda equal to 3 are 1 2 2। ठीक है, और उसने पास कहां से होना है, सेंटर से, विच इज -2 2 1 -1। सो वन इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज गिवन बाय x minus -2 अपॉन 1, y minus 2 अपॉन 2, z minus -1 अपॉन 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वन एक्सिस। Another axis you can obtain by putting lambda equal to 6 here, thereby you will be finding the values of LMN। ठीक है, तो वो LMN यहाँ पे रख के और ये पॉइंट -2 2 -1 यहाँ रख के you will be finding another equation of axis। ठीक है, फिर उसके बाद corresponding to lambda equal to -1 आपके पास you will have the third equation of axis, right? So this way you can find equation of all the axis। ठीक है, सो आपने इसकी एक्सरसाइज 13.1 के सिर्फ 4 क्वेश्चन है, चारों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। थैंक यू।